चले जी, स्टार्ट करते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ रिवीजन। और द रिवीजन इज एक्चुअली फॉर द प्रीवियस टॉपिक, क्योंकि ये आप लोगों को ऑब्वियसली भूल चुका होगा। आप लोगों को स्टेक होल्डर का तो याद होगा, चैप्टर लेक्चर हमारा 12th लेक्चर था। और अब जो हमारा उसके बाद 13th लेक्चर एक था, वो भी मैंने अपलोड किया था, और वो था हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेसिक्स के ऊपर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, उसके बेसिक्स आपको याद होंगे। एक मिनट जी, ये उसामा ने हाथ खड़ा किया है। जी उसामा बेटा, आप कोई बात करना चाह रहे हैं? चलें जी, नहीं गलती से हो गया था। सो ये आप लोगों को याद है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने स्टार्ट किया था, और आपको वो एनरॉन वाली वीडियो भी याद होगी। उसमें हमने क्या था, रीजंस बेसिकली पढ़े थे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, एजेंसी थ्योरी क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर इसके अलावा रीजंस क्या हैं, और फिर असेसमेंट की फैक्टर्स के क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आपने मैयर करनी है किसी कंपनी की, सो हाउ यू मैयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, एंड फॉर दैट यू हैव दीज 4 की फैक्टर्स। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। और आप लोगों को अगर भूल गया है तो एक काम करते हैं, मैं 2 मिनट की एक वीडियो है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। उसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो एक मिनट, कौन सा था, ये है जी। ये आप एक दफा देख लें, ये 3 मिनट की वीडियो है, ये आपकी रिवीजन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट कंप्यूटर साउंड। चलें। Well, corporate governance is all about how businesses, and in particular companies, private limited or public limited companies, are run, how they're directed and controlled. And it's an important concept, particularly for companies, because of a concept called the divorce between ownership and control. We've looked at this in a separate video. What this means is that companies are controlled by the board of directors, by the senior management. And they may also be shareholders, but in many situations, particularly larger, complex businesses, there are many, many shareholders who have no involvement in the day-to-day running or control of the business, but they are still owners of the business. Therefore, the board of directors have a duty of care, a duty to act in the interests of shareholders. And this is why the concept of corporate governance is so important, and it's why there are various processes in place to try and make sure it happens effectively. Now, corporate governance is the responsibility of the board of directors. It's one of their tasks so that they can fulfill this duty to the shareholders. And there are various legal requirements in particular for board of directors to comply with. The shareholders, who of course appoint the directors, appoint the board, just need to make sure that they're satisfied that the corporate governance rules, the processes are in place and that they're acceptable. So, what are these key responsibilities of directors in a system of corporate governance? Well, clearly they're responsible for setting the direction and the objectives of the business, the aims and objectives. A key part of strategy is to do that, and then to decide and to determine the most appropriate strategy to achieve those aims and objectives. Part of that, of course, is then providing the leadership for the entire organisation to try to make the strategy effective, and to supervise management. So within the hierarchy, there will be different layers of management, from senior through middle management and possibly down to junior management. And the directors are responsible for supervising the managers that they put in place of the business. And finally, of course, a key part of the director's role is then to report to shareholders on how they're doing, both the financial position of the business, the performance of the business, but also other important aspects of business operation that shareholders want to know about. And that's how corporate governance works. This is a more detailed series of points here that you probably don't need to know for your specification, but if it's of interest to you, you may need to know, or may like to know, that there are various rules and regulations in place, in particular for public companies, that set out what's known as best practice for corporate governance, in particular splitting the role of the CEO, who's the executive leader of the business,
and the chairman, who chairs the board of directors. Also importantly, making sure that companies, larger companies, have non-executive directors who are not involved in the day-to-day जी बेटा, तो चले यहाँ पे पॉज करते हैं क्योंकि एक टॉपिक आगे ही निकल गए हैं, तो वो टॉपिक अभी हमने पढ़ना है। अच्छा जी, ये तो चले एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके सामने आ गया और आपको थोड़ा-सा याद आ गया होगा कि क्या था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द वे द थिंग्स आर मैनेज्ड इन द कंपनी एंड कि क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सारा हमने केसेस वगैरह देखे थे, पुराने जो मैल प्रैक्टिसेस होती थी। अच्छा, अब इसमें थोड़ा-सा आगे बढ़े अगर तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी वो तरीका जिससे कंपनी को रन करना चाहिए, उसके ऊपर एक बहुत ही पुरानी मशहूर बहस चली हुई है और ये बहस हमने एक दफ़ा एथिक्स के लिए मिड से पहले जो सिलेबस था शायद उसके लिए भी की थी। मिड आई मीन सॉरी आपके तो एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए। तो शुरू में हमने किया था रूल बेस्ड वर्सेस प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। अच्छा, एक स्कूल ऑफ थॉट वो कहता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड बी रूल बेस्ड और एक कहता है प्रिंसिपल बेस्ड होनी चाहिए। रूल बेस्ड का मतलब कि ऐसे रूल्स होने चाहिए विच आर कंपल्सरी टू अबाइड बाय, जो कि लाजमन फॉलो करने चाहिए कंपनीज को और कंपनीज को खुद भी वो लॉज बनाने चाहिए थ्रू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और साथ ही साथ रेजोल्यूशंस के थ्रू शेयर होल्डर्स को वो लॉज बनाने चाहिए जो कि लाजमी हो किसी के लिए फॉलो करना। साथ ही साथ सिर्फ कंपनी की ये जिम्मेदारी नहीं बल्कि एट अ मैक्रो लेवल द गवर्नमेंट शुड आल्सो बी इन्वॉल्व, द लोकल गवर्नमेंट एज वेल एज द फेडरल गवर्नमेंट्स एंड द institutions that are controlling the companies. For example, पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट है, SCCP है, FBR है, तो ये जो इदारे हैं खास तौर पर SCCP, ये इदारों को वो रूल्स बनाने चाहिए जो कंपनीज हर हाल में फॉलो करें। अच्छा, दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि प्रिंसिपल बेस्ड होना चाहिए। वो कहता है कि कंपनीज के अंदर डायनामिक सिचुएशंस आती रहती हैं और अगर आप रूल बेस्ड बना देंगे तो वो कंपनीज या बिजनेस जो है उसकी खूबी या उसकी खासियत ही ये है कि हाउ इज द बिजनेस मैनेज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस, क्योंकि हर बिजनेस को डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप रूल्स बनाएंगे तो रूल्स तो हर सिचुएशन में सेम है, इससे कंपनीज को नुकसान होगा, वो इनोवेट नहीं कर पाएंगी, एक्सपैंड नहीं कर पाएंगी। मिसाल के तौर पे उसकी एक बड़ी हमारे पास रीसेंट मिसाल है ये कोविड-19 वाली। तो कोविड-19 एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई, बिजनेसेस को बहुत कुछ चेंज करना पड़ा। अगर उनके रूल्स में होता कि आप ये कुछ नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल टाइमिंग वगैरह या उनकी ऑनलाइन यूज नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल कर सकते एटसेट्रा, इस तरह के अगर कोई रूल्स होते तो वो कंपनीज तो रह जाती पीछे, बल्कि कुछ कंपनीज तो रह भी गई जो कि टेक्नोलॉजी को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकी अपने बिजनेसेस में। तो इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस के लिए ये रूल बेस्ड अप्रोच अच्छी नहीं है, कंपनीज इनोवेट नहीं कर पाएंगी, डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगी, कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं हासिल कर पाएंगी, फिर तो सबके लिए सेम है। तो एक कंपनी एक उसमें बंद हो जाएगी, बंद कमरे में बंद हो जाएगी और कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी उस तरह से जिस तरह करना चाहिए। तो ये लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हमें रूल्स बनाने चाहिए, हमें प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच यानी कंपनीज के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस को उजागर किया जाए, उनको फोर्स ना किया जाए बल्कि इसकी इंपॉर्टेंस को उजागर किया जाए। इस तरह ज्यादा बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सकेगी क्योंकि हमारे पास ज्यादा तरीके होंगे और ज्यादा स्कोप होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल को अप्लाई करने का। जो है रूल बेस्ड अप्रोच है वो तो गिनती के कुछ हमें रूल्स दे देगी और बस उन्हीं को फॉलो कर लेंगे, दैट्स इट। तो बेहतर है कि प्रिंसिपल बेस्ड। अब ये ऐसी अप्रोच है जो कि ये बहस जो हमेशा से चलती है, ये आगे भी चलती रहेगी क्योंकि हमेशा कुछ लोग रूल बेस्ड अप्रोच को प्रेफर करेंगे। खासतौर पर पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं हम तो कहते हैं जी यहाँ पे तो डंडे का रूल है और डंडे से ही सब ठीक होते हैं और कोई भी मानता नहीं है। तो पाकिस्तान में मैं भी चले कहता हूँ कि रूल बेस्ड अप्रोच ज्यादा बेहतर है, लेकिन कब तक आप लोगों को डंडे के जोर पे काम करवाएंगे? अल्टीमेटली तो आपको उनके अंदर एक सेंस क्रिएट करनी है, सिविक सेंस क्रिएट करनी है।
अब इशारे अगर कोई नहीं काटता कैमरे की वजह से, तो जैसे कैमरे खत्म होंगे लोग फिर इशारे काटने लग जाएंगे, बजाय इसके कि हम लोग लोगों के अंदर ये चीज उजागर करें प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच के थ्रू कि ये इशारा काटना बुरी बात है जी। तो इसी तरह ये एक बहस है जो हमेशा से चलती है कि आप में से भी आधे लोग प्रिंसिपल बेस्ड कहेंगे, आधे रूल बेस्ड कहेंगे। अमेरिका में प्रिंसिपल बेस्ड लोग ज्यादा मानेंगे और पाकिस्तान में रूल बेस्ड। तो ये एक ला हासिल बहस है, लेकिन फिर भी आपको बताना फर्ज है, जरूरी था, क्योंकि ये दो अप्रोचेस दुनिया में चल रही हैं। अच्छा, बेहतरीन अप्रोच क्या है? बेहतरीन अप्रोच है कि आप दोनों को कुछ ना कुछ कर लें, कुछ रूल्स बना लें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, और बाकी सारी जगहों पे प्रिंसिपल्स रखें जहां पे कंपनीज को रूम मिले टू इनोवेट। अच्छा, फिर रूल्स हो या प्रिंसिपल हो, तमाम ममालिक में, और तमाम में नहीं, बेसिकली बेशतर ममालिक में, और ख़ास तौर पे हम क्योंकि फॉलो करते हैं यूके, यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को, तो यूके में और अमेरिका में ख़ास तौर पे, और यूरोप में बाकी में, ये बाकायदा ऐसी थ्योरीज, ऐसे कोड्स, कोड्स आप समझते हैं, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या सेट ऑफ रूल्स, उनको हम कहते हैं कोड्स। वो बनाए गए हैं जो कि फॉलो किए जाने चाहिए फॉर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ऐसे रूल्स बकायदा बनाए गए हैं। किसने बनाए हैं जी? डिफरेंट थ्योरिस्ट और जो आपके एकेडमिशियंस हैं, साइंटिस्ट्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उन्होंने बनाई है। फिर कई ममालिक में कंट्री जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बनाए हैं ऐसे कोड्स। तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बेसिकली वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या रूल्स है जिनको अगर फॉलो किया जाए तो कंपनी बेहतरीन तरीके से चलाई जा सकती है। और उन कोड्स में जो सबसे मशहूर तरीन कोड्स हैं वो मैं आपके सामने नाम लिखे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। जिस तरह एक सबसे मशहूर कोड जो हम भी शायद अपने सिलेबस में पढ़ेंगे वो है कंबाइंड कोड ऑफ यूके। ठीक है जी, यूके का है एक कंबाइंड कोड, और ये एक बड़ा ही फुल फ्लैज डॉक्यूमेंट है, डिटेल्ड है, ज्यादातर प्रिंसिपल बेस्ड है ये, कि ऐसे ऐसे आपको कंपनी को चलाना चाहिए, ये चीजें फॉलो की जानी चाहिए, प्रैक्टिसेस फॉलो की जानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक है जी हमारे पास कैडबरी रिपोर्ट। कैडबरी रिपोर्ट भी इसी तरह एक कोड है जो कैडबरी साहब, नाम से आइडिया हो रहा है, एक है कैडबरी साहब, उन्होंने ये रिपोर्ट शाया की कि मेरे मुताबिक या हमारे मुताबिक ये होना चाहिए। फिर अमेरिका के अंदर ये जो एनरॉन वगैरह का केस जिसकी वीडियो भी आपने लास्ट टाइम देखी थी, अमेरिका के अंदर बकायदा पहली दफा लॉ पास किया गया जिसने कंपनीज को कुछ कंपनीज के लिए कुछ लॉज पास किए उस एक्ट के थ्रू, जो अमेरिकन कांग्रेस है उसने, कि कंपनीज को ये चीजें करना लाजमी है, क्योंकि अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा क्या कहते हैं अफेक्टी था ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैल प्रैक्टिसेस। तो अमेरिका के अंदर तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज जिस तरह एनरॉन और फिर लीमन ब्रदर्स एक्सेट्रा, ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले ये आ गया था एक्ट। इसमें अमेरिका ने तो सबसे ज्यादा सफर किया था मैल प्रैक्टिसेस की वजह से। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ लॉज भी बनाने चाहिए, तो एक एक्ट पास किया गया था। सर्वेन्स और ऑक्सली, ये वो लोग थे, वो कांग्रेसमैन थे, कांग्रेसमैन जिन्होंने ये एक्ट तजवीज किया था पार्लियामेंटेरियन से, और वो फिर पास किया गया। उसके मुताबिक कंपनीज को ये चीजें, डिटेल में हमने नहीं जाना, ये रूल्स थे जो कंपनीज को फॉलो करना लाजमी थे। अच्छा, फिर मजे की बात ही पाकिस्तान में भी एक हुआ है, मैं आपके साथ ना बल्कि एक शेयर करता हूँ ये स्क्रीन, ये देखें जरा, ये है यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। ये अप्रैल 2016 में आपके सामने आ रहा होगा, ये रिवाइज हुआ। ये देखें जी 37 पेज है इसके, और ये कुछ इस तरह है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल जो है यूके की, ये देखें। अब ये आपको ना समझाने के लिए सामने मैंने ये पेज खोला है। देखिए, सबसे पहले गवर्नेंस एंड कोड, प्रीफेस, कंप्लाई और एक्सप्लेन, ये मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द कोड, ये इधर उधर की बातें हैं, ठीक है जी, इनको तो हम पढ़ते भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर शुरू के इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स को। अब देखिए, आपको समझ लगेगी कि बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके से हम बताना चाह रहे हैं आपको। सेक्शन ए देखें, लीडरशिप।
अब लीडरशिप कौन है कंपनी के? डायरेक्टर्स, सीईओ, चेयरमैन एटसेट्रा। तो पेज 7 से लेके पेज 10 तक ये 3 पेजेस बताए गए हैं जी लीडरशिप के बारे में, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें जी, ये लीडरशिप, ये देखें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर आप पढ़ सकें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, चेयरमैन के बारे में, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ये होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस जो है उस लीडरशिप की, कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड एटसेट्रा, ये हमने पढ़ने हैं अभी खैर। अच्छा, अपॉइंटमेंट किस तरह होनी चाहिए बोर्ड में, ये आप देख रहे हैं, देखें ये बोर्ड की अपॉइंटमेंट्स कैसे होनी चाहिए एटसेट्रा। अच्छा, अब इसी तरह फिर उसके बाद जो आता है इफेक्टिवनेस, आगे अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी बोर्ड की एटसेट्रा, रिम्यूनरेशन, इनकी पेज वगैरह कैसी बनेंगी, रिलेशन विद शेयर होल्डर्स, उसके बारे में कुछ प्रिंसिपल्स बता दिए गए। ऐसे ऐसे आपने उनको इंटीमेट करना है, शेयर होल्डर्स को मीटिंग्स के लिए बुलाना है, रेजोल्यूशन कैसे पास करनी है एटसेट्रा। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस रिलेटेड, परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाएगा, और फिर डिस्क्लोजर्स कौन कौन से होने चाहिए। तो ये आपके सामने देखें, अब आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेसिकली वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड्स क्या हैं। इसी तरह गाइडलाइंस है। अच्छा, ये तो था यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, कंबाइंड कोड, जो हमने डिटेल में पढ़ना भी है इंशाल्लाह। फिर इसी तरह जी मजे की बात है, पाकिस्तानी कोड भी है। ये देखें, ये आपके सामने आ रहा है एसईसीपी का। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2002 में, कोड इशू किया गया था, और 2017 में ये इसका रिवाइज्ड कोड आया था, रिवाइज्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। अगर आप देखें 2017 का, तो ये देखें जी, ये चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी यानी बेसिक्स, चैप्टर 2 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, डाइवर्सिटी इन द बोर्ड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, क्या होना चाहिए, चेयरमैन की क्या जिम्मेदारियां हैं। नंबर 2 है जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही तकरीबन यूके वाले की तरह ही है, लेकिन अंदर थोड़े से चेंजेस होते हैं। मीटिंग्स, ये देखिए मीटिंग्स के बारे में बताया गया है कि मीटिंग्स किस किस तरह होनी चाहिए। अच्छा जी, डिसीजंस के लिए किन बातों पे डिसीजन ले सकता है बोर्ड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा, रिम्यूनरेशन, ये वहां पे भी था। और देखिए ये मोर और लेस सेम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ये उधर भी है यूके में भी, सीएफओ, सेक्रेटरी, इंटरनल ऑडिट, तो ये तकरीबन सेम है। और क्योंकि ऑब्वियसली सारे यूके और यूएस मॉडल को ही फॉलो करते हैं, इन दोनों में से एक को ही कुछ अपना भी बना लेते हैं, तो ये वो सारे कमिटीज ऑफ द बोर्ड, ये सारी हमने डिटेल में पढ़नी है, ऑडिट कमेटी क्या होती है एटसेट्रा। तो ये जो आपके सामने बेटा ये दोनों थे बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोर्स, एक पाकिस्तानी था और एक आपके सामने यूके है। ये इनके लेटेस्ट वर्जन है, रिवाइज्ड वर्जन हैं। एक मिनट वापस आ जाओ। ये आपको आइडिया हुआ कि किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स रन करते हैं। इस तरह सर्वेन्स ऑक्सली एक्ट भी इसी तरह होगा, लेकिन वो एक्ट है कांग्रेस का, पार्लियामेंट का, तो इसीलिए वो लाजमी है फॉलो करना। ये जो हमने पढ़े हैं इनमें से पाकिस्तान के अंदर भी जब आप वो पढ़ेंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट में शेयर भी करूंगा, तो वो डॉक्यूमेंट में कुछ लॉज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो इस तरह से जी बताया गया है लोग कंपनीज को कि या डायरेक्टर्स को खास तौर पे कि कैसे आपने कंपनीज को रन करना है, ताकि वो इन द बेस्ट फेवर या इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स हो। जी मैं सवाल देख लूं अगर कोई आया है। अच्छा जी, वो नोट्स बोला था, बिजनेस एथिक्स के नोट्स दूंगा। यार वो नोट्स ना फोटोकॉपी पे पड़े होने चाहिए, मैं लास्ट 2 ईयर से वो नोट्स रखवा रहा हूँ, अब पता नहीं उनके पास है या नहीं। अलबत्ता आपके जो सीनियर्स गए हैं ना अभी 8वें सेमेस्टर वाले, वो उनके पास पड़े हुए हैं। आप फोटोकॉपियर से वैसे पता कीजिएगा, अगर ना हो तो मुझे फिर बताइएगा, मैं आपके सीनियर्स में से किसी को कहूंगा वो नोट्स रखवा दे। लेकिन हमने ना उन नोट्स से थोड़ा सा हटके भी पढ़ा है, वो नोट्स से थोड़ा ज्यादा हमने डिटेल्ड पढ़ा है। तो आपके पास जो नोट्स है वो ये वीडियोस है बेटा। ये वीडियोस का यही मकसद है कि आप बाद में भी इनको आराम से देख सकें, अपनी रिवीजन कर सकें। ये आपके पास वो नोट से हटके भी कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं, उसके लिए भी आपको वीडियोस तो देखनी पड़ेंगी। फिर भी मैं जो नोट्स है ना वो रखवा दूंगा, ठीक है। एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्स कब है जी? मुझे तो पता ही नहीं है, वैसे आपस की बात है, आपको पता है?
एग्जाम्स करीब है दूर है ये तो हमें पता ही नहीं है, आप लोगों को पता चल गया, चले अच्छी बात है, हमें नहीं अभी तक पता, जो आपस की बात है। चले जी, मैं ठीक है, फोटोकॉपियर को मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रख ले अपने पास नोट्स, और पता नहीं उसने क्यों नहीं रखे, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो चले, मैं रखवा दूंगा इंशाल्लाह नोट्स आप किसी सीनियर को कह के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4 पीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कैसी मजे की बात है, पीज हर जगह ही घुस जाते हैं, मार्केटिंग के भी आपने पढ़े हैं, और इसी तरह 5 सीज ऑफ क्रेडिट भी आपने पढ़ा है। तो 4 पीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी एक थ्योरी पेश की गई है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है इन 4 चीजों पे फोकस करती है, या ये 4 चीजें जो है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट बनती हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस जिस हिसाब से कंपनी चलती है। नंबर 1 इज द पीपल, लोग हैं जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जाहिर बात है, लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाते हैं, लोग इन्वॉल्व हैं, हमें लोगों पे फोकस करना चाहिए। लोगों में कौन है जी, लोगों में डायरेक्टर्स भी हैं, लोगों में वो भी हैं, आपका अल्लाह भला करे, लोअर लेवल एम्प्लॉइज, चपरासी और वो वॉचमैन वगैरह एटसेट्रा, वो लोग भी हैं। तो लोग बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाते हैं। अच्छा, सेकेंडली, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो अच्छा, दूसरा प्रोसेस, जो तमाम प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जिनमें प्रोडक्शन प्रोसेस है, मार्केटिंग प्रोसेस है, फाइनेंशियल प्रोसेस है। तो प्रोसेस का मतलब सिर्फ मशीन नहीं होता या प्रोडक्शन प्रोसेस ही नहीं होता, बल्कि प्रोसेस का मतलब तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो कंपनी को रन करने में मदद करते हैं, उनको अच्छी तरह डॉक्यूमेंट करें, अच्छी तरह समझे, उनमें लूप होल्स देके तलाश करें, उनको बेहतर बनाए ताकि शेयर होल्डर्स के लिए बेहतरीन काम किया जा सके। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो कोड्स हैं उनमें कुछ चीजें पीपल के लिए हैं, कुछ प्रोसेस के लिए, फिर कुछ है पर्पस। जो पहले इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं वो आपको पर्पस बताएंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है शेयर होल्डर्स के लिए बेहतरीन प्रैक्टिसेस का तयन करना। अब पर्पस में भी देखें, मिशन भी है, विजन भी है। ये आप देखेंगे कि हर कंपनी मिशन और विजन बनाती है, क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के मुताबिक आपको अपने पर्पस के अंदर मिशन और विजन को क्लियरली डिफाइन करना है। ऑब्जेक्टिव्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है। तो ये पर्पसेस को डिफाइन करें, ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह से डिफाइन करें, तो ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही एक पार्ट है। और फाइनली परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली की ही जा रही है परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। तो इसके बारे में आपने क्या करना है कि परफॉर्मेंस की पहली बात ये क्राइटेरिया सेट करें, करंट परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से मेजर करें, उसका क्राइटेरिया सेट करें, और की फैक्टर्स या की इंडिकेटर्स जिनको मेजर करके आप परफॉर्मेंस के अच्छे या बुरे होने का तयन करते हैं, उनको भी डिसाइड करें। तो ये परफॉर्मेंस के बारे में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कुछ गाइडलाइंस है कि आपको बेसिकली परफॉर्मेंस के लिए भी ये चीजें ज़हन में रखनी है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जी लोगों के बारे में बताता है, कौन लोग, कैसे लोग होने चाहिए, क्या उनके काम होने चाहिए, और किस तरह उनको अपॉइंट करना है, किस तरह उनको निकालना है, किस तरह उनको पैसे देने हैं, रिम्यूनरेशन आपने अभी देखा था, एक्सेट्रा। प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, उनको कैसे बेहतरीन किया जा सकता है, कहाँ पे लूप होल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को, वो भी आपने भी देखा था, फिक्स किया जा सकता है, एक्सेट्रा। इंटरनल ऑडिट भी इसी में आ जाता है, वो भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पर्पस, पर्पस क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एटसेट्रा ये क्लियर होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। और फाइनली परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, करंट क्या है और आगे कैसी होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर ये चीजें आप ज़हन में रखते हैं, 4 पीस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो आप बेसिकली एक बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मॉडल
बना लेंगे और कंपनी आपकी बेहतर तरीके से रन की जाएगी। चले जी, ये तो था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेसिक्स। और अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स की तरफ, या अगर रूल्स कह लें आप कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली कैसे बेहतर की जा सकती है। तो सबसे पहला चैप्टर या सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जो पॉइंट है दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में क्या अहकामात हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं डिफरेंट कोड्स के, जो अगर फॉलो किए जाएं तो हम बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला चैप्टर हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक के अंदर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। और इसके अंदर हमने पढ़ना क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर दूं। सबसे पहले बेटा आपने होता क्या है, बोर्ड डायरेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एजेंसी रिलेशनशिप आपने पढ़ लिया, टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, एटसेट्रा। फिर इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, दूसरा इनकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, इनकी रिम्यूनरेशन पे क्या होगी, फिर कुछ कमिटीज होती हैं, वो कमिटीज क्या होंगी जो इनके अंदर से बनेंगी। तो ये तमाम चीजें जो है ये हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टॉपिक के अंदर पढ़नी है। अभी तक बेटा कोई सवाल है तो कर ले, क्योंकि हमारे पास 1-1.5 मिनट रह गया। मैं कह रहा हूँ कि अगले सेशन में ही मैं स्टार्ट करूंगी। अभी कोई सवाल है अगर अभी तक कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है जी? जी एक आया सवाल मेरा ख्याल है। नहीं जी, अटेंडेंस ही आई जा रही है। अच्छा चले, खैर तो चलो बेटा, बीच में अगर ये हमारा बंद हो जाए तो आप फिर फौरन सेशन जो है दूसरा ज्वाइन कर लीजिएगा। 15-20 मिनट ही हमने और पढ़ना है आज, इतना ज्यादा शायद ना हम पढ़े, तो 15-20 मिनट के लिए आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चले बढ़ते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ। नंबर वन थिंग इज व्हाट इज अ डायरेक्टर। तो इसके लिए मैं आपको ये डायरेक्टर की एक डेफिनेशन मैंने निकाली थी पाकिस्तान की कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक। ये देख सकते हैं आप, अंडर द लॉ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द, ये बोर्ड की डेफिनेशन है, रिपोजिटरी ऑफ ऑल कॉर्पोरेट पावर्स except those powers which by law are to be undertaken by the shareholders या by articles of association। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अदर देन शेयर होल्डर्स जो भी पावर्स हैं वो सारी की सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जी बेटा, तो लेट्स रिज्यूम।
अच्छा जी, ये आपके सामने मैंने खोला था। ये कंपनीज ऑर्डिनेंस जो 1984 है उसके मुताबिक ये कुछ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि ये डायरेक्टर्स के बारे में ऑर्डिनेंस क्या कहता है। सबसे पहले बोर्ड की हम बात कर रहे थे, तो डेफिनेशन बोर्ड की ये है कि अंडर द लॉ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द repository of all corporate powers except those powers which by law are to be undertaken by shareholders or such powers which have been given to the shareholders under the article of association of a company। इसका मतलब ये है कि बोर्ड is the custodian या holder of all corporate powers। सिर्फ वो नहीं है जो शेयर होल्डर्स के पास है, इसका मतलब है बाकी तमाम पावर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑल पावर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर रेस्टेड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये है जी बोर्ड की डेफिनेशन के अंदर ही आपको उसकी पावर का पता चल जाता है कि बेसिकली अदर देन शेयर होल्डर्स सारी पावर्स जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। ये है जी बोर्ड। और फिर बात ये देखें आपके सामने ये बोर्ड, ये हमारा ऑर्डिनेंस क्या कह रहा है डायरेक्टर्स के बारे में, ये भी आपके साथ मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर लूंगा वैसे ही आप पढ़ना चाहें अगर। ये लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि डायरेक्टर्स कौन है जी, डायरेक्टर्स कौन है। और डायरेक्टर एज द नेम सजेस्ट इज समवन हु डायरेक्ट्स the company। what does he or she directs the management and the policies and the decisions of the company। So director is anyone who has the power and control to manage and to manage the company and to make decisions and policies। तो ये बड़ी आसान सी लेमैन डेफिनेशन है कि डायरेक्टर इज समवन हु हैज द पावर एंड कंट्रोल, ठीक है, ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ द कंपनी। तो ऐसे बंदे को हम डायरेक्टर कहते हैं। और होता क्या है कि टुगेदर ऑल दीज डायरेक्टर्स ये कहाँ से आते हैं, ये बेसिकली शेयर होल्डर्स की तरफ से किए जाते हैं इलेक्ट, और सिलेक्ट भी नहीं बल्कि इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू वोटिंग एंड वोटिंग एट द जनरल मीटिंग्स। या जो भी मीटिंग्स होती हैं वो बाकायदा मीटिंग्स के अंदर इनके बारे में वोटिंग होती है। जो लोग ज्यादा वोट ले लेते हैं वो डायरेक्टर्स बन जाते हैं कंपनीज के, ठीक है जी। और इनका काम क्या है, इनका काम है एजेंसी रिलेशनशिप के मुताबिक टू मैनेज ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये तो है इनका मोटा सा काम, ठीक है, टू मैनेज ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, बाकी इनकी और क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये डिटेल में भी हमने बहुत पढ़ना है। वैसे मोटी मोटी ड्यूटीज आपको बता देता हूँ। सबसे पहली तो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी टू मैनेज द कंपनी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। दूसरी बात ये है इनकी ड्यूटी है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। इनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। इनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अर्न प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर्स। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें जो इनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। डिटेल में बाकी छोटी छोटी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हम पढ़ते रहेंगे साथ साथ। लेकिन सबसे पहले आपको ये एक आइडिया हो जाना चाहिए कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं और बोर्ड क्या है। इस तरह के काफी डायरेक्टर्स जब शेयर होल्डर चूज करते हैं तो टुगेदर ऑल ऑफ देम मेक बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। बोर्ड मींस अ कलेक्शन, ठीक है, तो एक कलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाती है। अच्छा, एक मजे की मेरा ख्याल है, मुझे जरा बताएं, मैंने एक दफा आपके साथ वो शेयर किया था शायद, कंपनी की हायरार्की क्या होती है, आपको याद हो शायद, मैंने, मेरा ख्याल है चौथे सेमेस्टर में शायद आपके साथ ये शेयर किया था जी कि डायरेक्टर्स क्या होते हैं, सीईओ क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है। आपकी क्लासेस के साथ पता नहीं किया नहीं किया। मैं वैसे अमूमन ये एथिक्स के उसमें करता हूँ। कोई अगर मुझे बता दे जी तो बेहतर होगा कि एक कॉम्पोजिशन, कंपनी की क्या कॉम्पोजिशन होती है। बोर्ड की तो चले कॉम्पोजिशन हम देखते हैं अभी बाद में, कंपनी की कॉम्पोजिशन क्या होती है जी। एक मिनट,
राशिद आपके पास तो यार माइक ही नहीं है, आपने हाथ क्यों खड़ा किया है? आपका तो माइक ही नहीं यहाँ पे शो हो रहा, रहने दो आप। किया हुआ है लेकिन भूल गया, तो फिर ये कैसे पता है कि किया हुआ है? चले मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं जाया करते इसके ऊपर हम। 1 मिनट, शेयर स्क्रीन। यार ये कैसे करते थे शेयर स्क्रीन? 1 मिनट जी। हाँ ये आ गया, चले जी। अच्छा भाई, सबसे ऊपर जो है, ये मुझे याद है मैंने एक एक्टिविटी की थी आप लोगों को जब मैंने कहा था कि ऐसी कंपनी कभी भी ना बने। शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को। क्यों? ताकि वो कंपनी को चला सकें। अब डायरेक्टर्स जो है बेसिकली, ये डायरेक्टर से मुराद है हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चले जैसा भी लिखा गया माजरत उसके लिए। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा उनको बेहतरीन इंसान लगता है वो उसको बना लेते हैं सीईओ। सीईओ का ही दूसरा नाम है एमडी, इसी का नाम है जीएम, और बैंक्स वगैरह में इसी का नाम है प्रेसिडेंट। ठीक है जी, तो ये एक ही आदमी है, और ये कौन है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो सबसे इनको बेहतरीन आदमी लगता है, केपेबल, उसको ये सीईओ चूज कर लेते हैं, बोर्ड ही चूज कर लेता है। फिर सीईओ जिस तरह मुनासिब समझता है वो कंपनी को उन हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है जी, और वो जो हिस्से हैं बेसिकली, इन हिस्सों को हम कहते हैं डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस एटसेट्रा। ये सीईओ की मर्जी, ऑब्वियसली विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड। ठीक है, कि वो अपनी कंपनी को जैसे बेहतर समझता है वो डिवाइड कर सकता है डिपार्टमेंट्स में। हर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो डायरेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल जी, डायरेक्टर फाइनेंस, ठीक है, इसी तरह डायरेक्टर मार्केटिंग, इसी तरह डायरेक्टर एचआर, इसी तरह होगा कोई, मैं ये कोई जरूरी नहीं यही हो, अमूमन ये होते हैं जी, प्रोडक्शन डायरेक्टर, ठीक है, या आर एंड डी भी हो जाता है कभी कभार। ठीक है, आर एंड डी, आर एंड डी होता है, वैसे आपको बता रहा हूँ। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया, और हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो है डायरेक्टर। डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर मार्केटिंग, चले जी जैसा भी लिखा जा रहा है आप लोग समझ तो रहे हैं मेरा ख्याल है ना? हाँ जी, ठीक है, इसी तरह डायरेक्टर एचआर और डायरेक्टर प्रोडक्शन वगैरह। अब ये लोग क्या करते हैं जी, ये लोग, अब ये हर डिपार्टमेंट के हेड है, इन्होंने, अगर आप देखें तो इन लोगों ने, ये डायरेक्टर्स ने रिपोर्ट करना है सीईओ को, और सीईओ रिपोर्ट करेगा पूरे बोर्ड को। ठीक है, अच्छा, पूरे बोर्ड में सिर्फ ये लोग नहीं होते, आगे हम पढ़ते हैं और भी बहुत लोग होते हैं बोर्ड के अंदर। तो ये पूरे बोर्ड के अंदर ये डिस्कशन होगी इन तमाम की परफॉर्मेंस की थ्रू सीईओ। अब ये जो डायरेक्टर्स होते हैं, ये फिर ऑब्वियसली एक बंदा तो नहीं सारे डिपार्टमेंट का काम कर सकता,
ये अपने डिपार्टमेंट को डिफरेंट सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर डिपार्टमेंट का जो सब डिपार्टमेंट का हेड होता है वो होता है मैनेजर। नाम डिफरेंट हो सकते हैं बेटा, मैनेजर, सुपरवाइजर या सीनियर एग्जीक्यूटिव या कुछ भी नाम दे दें, लेकिन ये बेसिकली आपको हायरार्की बता रहा हूं मैं, नाम इनमें डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये जो मैनेजर, फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, इसका जो डायरेक्टर है, अब एक और मजे की बात, जो इसका डायरेक्टर है बेसिकली, इसके डायरेक्टर को हम कहते हैं सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, और उसको डायरेक्टर फाइनेंस भी कई जगह पे कहा जाता है। तो बेसिकली ये सीएफओ ही होता है। अब फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर डिफरेंट सब डिपार्टमेंट्स हैं। एक है कैश डिपार्टमेंट, एक है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, एक होगा आपका फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, एक होगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। फिर हो सकता है कि ये मैनेजर्स फर्दर इनको डिवाइड कर दें इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कैश के अंदर भी दो हो सकते हैं जी। फॉर एग्जांपल एक हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, एक हो सकता है जी आपका पेमेंट डिपार्टमेंट, एक हो सकता है रिसीट डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन इज सोनली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीईओ एंड देन द डायरेक्टर्स एंड देन द मैनेजमेंट। जितना किसी कंपनी ने पावर को डेलीगेट किया हुआ है उस हिसाब से ये डिपार्टमेंटलाइजेशन होती जाएगी, ठीक है। अब ये मैनेजर्स के नीचे फिर एम्प्लॉइज और सुपरवाइजर्स एटसेट्रा जो जो भी लोग आ जाते हैं जी, वो सारे यहाँ पे आते हैं। अब सिस्टम क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? यहाँ पे जो लोग हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये रिपोर्ट करते हैं या अंडर द सुपरविजन होते हैं इनके, असिस्टेंट मैनेजर्स कह लें, उसके नीचे सुपरवाइजर, और ये इस तरह हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। लो लेवल मैनेजर्स, फिर मिड मैनेजर्स, फिर अपर मैनेजर्स। फिर ये मैनेजर्स रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टर्स को, ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट करते हैं सीईओ को, सीईओ रिपोर्ट करता है बोर्ड को, और बोर्ड फिर फाइनली ब्रीफ आउट करता है शेयर होल्डर्स को। ये वो तरीकेकार है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मकसद क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मकसद है इस सारे तरीकेकार को बेहतरीन बनाना, ताकि बीच में कहीं भी कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जो कि शेयर होल्डर्स के हक में नहीं है। तो वो बीच में प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस और लॉज बनाए गए हैं जो बेसिकली इस फ्लो को मैनेज कर रहे हैं, इस फ्लो ऑफ पावर को, इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं। तो ये है बेसिकली हमारा मकसद कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ठीक है जी। सवाल कोई नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट, इसको भी अब हम खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो चलें जी, ये तो आपको आइडिया हो गया एजेंसी रिलेशनशिप का, ठीक है। अब एजेंसी रिलेशनशिप हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। टाइप्स ऑफ बोर्ड, सबसे पहले बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्टर्स, हमें पता होना चाहिए बोर्ड किस किस्म का होता है। कि बोर्ड जो दुनिया भर में यूज होता है, यूज कह रहा हूँ, जो बना हुआ है, जो चलता है, वो दो टाइप्स का बोर्ड चलता है जी। बोर्ड का मतलब डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दो किस्म का बोर्ड होता है, दो किस्म के बोर्ड होते हैं। या तो यूनिटरी बोर्ड होता है या टू टीयर बोर्ड होता है। यूनिटरी को वन टीयर भी कहते हैं, नाम से आइडिया। यूनिटरी का मतलब है वन, टू टीयर का मतलब है डबल साइडेड बोर्ड। अब यूनिटरी बोर्ड की क्या मिसाल है, इसके लिए मैं दोबारा, यार वो तो, हाँ यहाँ बेटा, ये एग्जाम्पल अभी तक जो है ना आपके सामने, ये है यूनिटरी बोर्ड। एक मिनट जी, अजान हो रही है, अजान के लिए जरा वक्फा ले लेते हैं हम। चलें रिज्यूम करते हैं। तो बेटा ये है यूनिटरी बोर्ड। यूनिटरी बोर्ड मतलब देखें, एक ही लाइन है, एक का मतलब है कि एक ही लाइन ऑफ
पावर है, एक ही डायरेक्शन है। तो कैसे? ये देखें जी, शेयर होल्डर, उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके नीचे डायरेक्टर्स, उसके नीचे मैनेजर्स एंड असिस्टेंट मैनेजर्स। दिस टाइप ऑफ बोर्ड इज नोन एज द यूनिटरी बोर्ड। ठीक है, और ये ना ज्यादातर फॉलो किया जाता है यूरोप में, जर्मनी, फ्रांस, इटली एटसेट्रा। ज्यादातर जो ईयू नेशंस हैं वो इसको फॉलो करती हैं, यूनिटरी बोर्ड। इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि क्विक है, यानी इंफॉर्मेशन फ्लो इज क्विक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियर और नो वन एल्स टू ब्लेम, और कॉस्ट भी कम है, ऑब्वियसली कम लोग इन्वॉल्व हैं, और जो चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और चैनल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग है, दे आर क्विक एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इनके ऊपर, अब ये जो हायरार्की है, इसके अंदर बीच में एक जगह पर अगर खराबी आ जाए तो वो खराबी पता नहीं चलेगी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजर से कोई चीज खराब होगी, उसने बता दिया फाइनेंस डायरेक्टर को कि सब सही है, उसने बता दिया इसको सब सही है, उसने बता दिया इसको सब सही है, उसने बता दिया इसको सब, ठीक है, ये जितना नीचे चले जाओगे उतना जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन ऊपर जाएगी वो कहीं ना कहीं से सही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक नीचे लेवल के एम्प्लॉय से कोई काम खराब हो गया, उसने उसके सुपरवाइजर ने उसको पकड़ तो लिया, लेकिन सुपरवाइजर ने कहा अगर मैंने बता दिया तो मेरी शामत आ जाएगी, उसने मैनेजर को बताया कि सब सही है। अब मैनेजर ने तो सुपरवाइजर को देखना है कि सही है या नहीं, तो मैनेजर ने ऊपर बता दिया डायरेक्टर फाइनेंस को कि सब सही है, उसने तो मैनेजर को देखना है, उसने आगे बता दिया जी सीईओ को कि सब सही है, तो उसने तो ऑब्वियसली अपने डायरेक्टर की बात सुननी है, और सीईओ ने फिर बोर्ड को बता दिया, बोर्ड ने सीईओ की बात सुनी है, और बोर्ड ने शेयर होल्डर्स को बता दिया, शेयर होल्डर्स ने बोर्ड की बात सुनी है। तो यहाँ पे बीच में अगर कोई मसला आता है, कोई खराबी आती है, तो वो एज इट इज ही ऊपर चली जाएगी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है, और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिर कम हो जाती है। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, इसके लिए जी एक नया तो नहीं, बेसिकली ज्यादा पुराना ही है वो भी, एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहते हैं 2 टियर बोर्ड। ठीक है, या उसको सुपरवाइजरी बोर्ड भी कहा जाता है, एक सुपरवाइजरी फंक्शन भी बोर्ड के अंदर शामिल किया गया। 2 टियर बोर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके मुताबिक एक बोर्ड के 2 पैरेलल एंड साइमल्टेनियसली वर्किंग पार्ट्स हैं। वन इज द मैनेजमेंट portion of the board and other is the supervisory portion of the board। तो एक बोर्ड के 2 फंक्शंस हैं, मैनेजेरियल, और इसका हेड कौन है जी मैनेजेरियल का? आपको पता है सीईओ या एमडी या जो भी है जी। तो सीईओ बोर्ड के एक हिस्से का हेड है जिसको कहा जाता है मैनेजेरियल फंक्शन ऑफ द बोर्ड, पोर्शन ऑफ द बोर्ड, और इसके नीचे सारे डायरेक्टर्स आ जाते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर एक सुपरवाइजरी है, और सुपरवाइजरी जो बोर्ड है उसका जो हेड है वो है चेयरमैन। तो चेयरमैन इज अ पैरेलल पावर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पैरेलल टू द सीईओ। दोनों को देखिए अगर आप, तो दोनों सेम लेवल पे हैं लेकिन पैरेलल। ये मैनेजेरियल पोर्शन का हेड है और ये सुपरवाइजरी पोर्शन का हेड है। अब चेयरमैन के नीचे भी कुछ लोग चेयरमैन के साथ खड़े होते हैं और वो भी डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन उनको हम कहते हैं NEDs, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अभी ये डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कौन होते हैं जी, बट NEDs आप याद रखिएगा कि ये सुपरवाइजरी रोल अदा करते हैं, यानी
इन लोगों का काम होता है, आपको याद होगा ये मैंने एक दफा डायग्राम बनाई थी क्लास में, नजर रखना किस पे, इन लोगों पे, कि ये लोग और ये लोग क्या काम कर रहे हैं। जहां पे ये लोग कोई मसला देखेंगे, ये फौरन मसला रिपोर्ट करेंगे चेयरमैन को, और चेयरमैन के थ्रू ये जाएगा शेयर होल्डर्स को। तो ये बेसिकली वो हायरार्की है जिसके थ्रू ये सुपरविजन होती है। ये बोर्ड कहलाता है 2 टियर बोर्ड, यानी डबल फंक्शन बोर्ड है, मैनेजेरियल एंड सुपरवाइजरी। तो ये साथ साथ चल रहे होते हैं। अच्छा, इसकी एक और बेहतरीन मिसाल मैंने एक अगर पढ़ाया तो क्लास में दी होगी। बेटा आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें भी क्या होता है, शेयर होल्डर कौन है जी, अवाम माशाल्लाह सबसे पावरफुल, वही बात आपको याद हो गया इरोनिकली। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारा मुल्क इतना बड़ा हम कैसे चलाएं, तो वो अपने में से जो सबसे ज्यादा माशाल्लाह करप्ट आई मीन बेहतरीन लोग होते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देते हैं, और आई मीन पार्लियामेंटेरियन बना देते हैं। फिर पार्लियामेंटेरियन जो उनमें से सबसे ज्यादा करप्ट आई मीन कॉम्पिटेंट होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो फिर मिनिस्ट्रीज बना देता है डिपार्टमेंट्स की तरह। मिनिस्ट्रीज में आगे फिर नीचे ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके साथ ही ये जो सुपरवाइजरी है ये है सेनेट। सेनेट का क्या काम है, डिस्कस करना कि पार्लियामेंट क्या कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो चोर को चौकीदारी मिलने वाला हिसाब होता है, लेकिन चलें जी, सेनेटर्स भी बड़े अच्छे माशाल्लाह ईमानदार लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनको देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो इन लोगों पे नजर रखते हैं, और फिर चेयरमैन सेनेट के थ्रू बेसिकली अवाम की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। ये है 2 टियर बोर्ड। जी, किसी का सवाल था अली हसन का? जी अली हसन बेटा पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये थोड़ा सा बता दें, ये आंखें जो आपने शायद इसकी समझ नहीं लगी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और नहीं सर ये बता दें। अच्छा यार चलो, आंखों की गुस्ताखियां माफ हैं। यस। अच्छा जी, ये आंखों की बेटा, ये मैंने ये बताया है कि इनका बेसिकली रोल है नजर रखना, चेक एंड बैलेंस रखना। ये ले मैं पलके भी बना देता हूँ बस, ये ले खुश। इनका काम है नजर रखना, किनका, ये एक मिनट, इसका चेयरमैन और उसके नीचे जो एनईडीज हैं, ये कौन है ये भी मैं बताता हूँ। ये लोग ही हैं, डायरेक्टर्स ही होते हैं, लेकिन ये जरा बखरे किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं। इनका काम है नजर रखना किसके ऊपर, इन डायरेक्टर्स के ऊपर, जो मैनेजेरियल डायरेक्टर्स हैं। ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ये वाले लोग याद रखिएगा, इनका काम डिसीजन मेकिंग नहीं है। इनका काम है सिर्फ देखना, नजर रखना। तो इन्होंने ये नजर रखी है बेसिकली, ये देखे ना, इनकी निगाहें जो हैं, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, ये इनकी निगाहें जो हैं इन लोगों पे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये जैसे ही कोई मसला डिटेक्ट करेंगे, ये एनईडीज और उनकी टीम ये रिपोर्ट करेंगे चेयरमैन को। चेयरमैन जो है वो फिर रिपोर्ट करेगा, ये आप देखें, शेयर होल्डर्स को। तो बेसिकली ये शेयर होल्डर्स का क्या है, चमचा होता है, ठीक है, जो ये देख रहा है कि सही काम हो रहा है या नहीं, या कैसा काम हो रहा है। अच्छा, चले आगे जाके ये भी देखेंगे कि ये अक्सर होता है कि एक ही बंदा चेयरमैन होता है, एक ही बंदा सीईओ होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसके बारे में क्या कहता है ये भी देखते हैं। तो अलबत्ता जी ये हमारे पास थे टाइप्स ऑफ बोर्ड। ठीक है, कि बोर्ड क्या होता है और उसकी क्या टाइप्स होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, आपको समझ लग गई। एक मैनेजेरियल फंक्शन है और एक सुपरवाइजरी फंक्शन है शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करने का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स का। एक मिनट जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स का। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद हैं हमारे पास, और आप अगर देखें तो एग्जीक्यूटिव, उनको इनसाइड भी कहा जाता है, नॉन एग्जीक्यूटिव एनईडी जो मैंने बात की, इनको इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है और आउटसाइड भी कहा जाता है। इसी तरह
नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, डी फैक्टो, शैडो एंड चेयर। अच्छा जी, इसके लिए मेरा ख्याल टाइम हमारे पास इतना नहीं रहा, 5-6 मिनट रह गए हैं। मैं चाह रहा हूँ इनको एक ही फ्लो में हम करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब कल का जो लेक्चर है उसके बारे में बेटा मैं आपको बता दूं कि कब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। मैं ये दूसरी भी रिकॉर्ड, ये भी अभी लगा देता हूँ यूट्यूब पे, दूसरी भी रिकॉर्ड करके भी लगा दूंगा। ठीक है जी, तो चलें अपना ख्याल रखें बेटा तब तक, और ये थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें मुझे।